Hey, welcome back to your favorite spoken English channel, Vision Spoken English. ये हमारा स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट वीडियो है और अभी से मैं इंग्लिश स्पोकन की कंप्लीट एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ. इसमें होगा क्या, मैं हर वीडियो में अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा एंड विद इन दोज टॉपिक्स आप एक्चुअली इंग्लिश के सारे सिनेरियो को समझ जाओगे. यही नहीं, इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्पल एक्सेंट, vocabulary, word meaning, synonyms, antonyms, and there are several things which I'll include in that videos. Okay? तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट डे है, इसमें मैं आपकी ज़्यादा भी डिस्कशन करूंगा. फर्स्ट, वाई इंग्लिश इज important for us. Next one is understanding different accents and dialects. और थर्ड, common challenges faced by non-English speakers like us, you and me. हमें इश्यूज़ क्या फेस करने पड़ते हैं और उस इश्यूज से बचने के लिए क्या उसके एक्चुअली उपाय हैं. पहला है व्हाई इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट. सबसे पहला, करियर ग्रोथ. If you are speaking other languages other than in English, then your career growth will face some issue. Like at every point that you are in, if your communication skill is not appropriate, if it is not at a level where people appreciate your spoken English, if people appreciate your communication skill, at that span of time, at that point of time, your career growth will stop there and then. You will see no growth inside that. Why? Because communication is the first, very first structure of in every area, in every structure, in every field that you're working. Communication is everything. So if you don't learn this language at least satisfactory point, then you will not see any career growth inside you. Second, I would tell you that it is the official language and professional language, not just in India, but over all the countries where you're working. You might be seeing this video from India, you might be seeing from other countries, but one thing is for sure कि ये आपके कंट्री में ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज किया जाता होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्मल मम्मी पापा या फ्रेंड से बात करने में भले ही अपने नॉर्मल लैंग्वेजेस का यूज करते होगे, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म, व्हेन इट कम्स टू ऑफिशियल लैंग्वेज, बीइंग इन ऑफिस, टॉकिंग टू योर कॉलीग्स, टॉकिंग टू योर बॉस, 80 out of 100 people will prefer in English. So it is a professional language. So somewhere it is actually really important to learn. Third most important reason is that it is most spoken as compared to other languages. Yes, English, along with English, there is Hindi, Chinese, and other languages are there which is being spoken much more, but English is going to be the most spoken language of this world. I'm not saying any language is superior or any language is inferior, but somewhere English has made impact, and the reason behind that was most of contribution done by writers, speakers. It was done in English only. That is why people started preferring this language rather than other languages. एक ऐसा लैंग्वेज जो आपको हेल्प करता है एक नए कल्चर से एक्सपोज होने में. बचपन में जब हम वो मूवीज़ देखा करते थे, इंग्लिश मूवीज़ जब तुरंत रिलीज़ होती थी, उसके साथ उसके हिंदी जो कन्वर्जन्स थे वो आया नहीं करते थे और हम बहुत ही फैसिनेटेड होते थे उन मूवीज़ को देखने के लिए. कुछ ऐसे मैगजीन्स भी थे जो सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल थे, उसके हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन बहुत कम आती थी. तो समवेयर वी यूज टू फील इन्फीरियर दैट अभी वो वर्ल्ड वाइड चल रहा है और हम उससे एक्सपोज नहीं हो पा रहे हैं जस्ट बिकॉज आई डोंट नो दिस लैंग्वेज. तो समवेयर इट क्रिएट्स एन इन्फीरियरिटी, लाइक इट क्रिएट्स इनसाइड यू लाइक यू आर समवेयर लेस दैन अदर्स. ओके, यू आर गेटिंग लेस एडवांटेज ऑफ योर लैंग्वेज नोइंग स्किल. सो इतने सारे रीजंस हैं इंग्लिश को जानने के, इतने सारे इंपॉर्टेंस थे इस लैंग्वेज के. इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कि ये एक्सेंट क्या होता है और डायलैक्ट क्या होता है. देखिए, अभी आपने इंपॉर्टेंस जाना. अब आप देखते हो कि जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ या फिर कोई भी स्पीकर आपसे बात करता है तो उसके बोलने का तरीका बहुत ही डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू से अ वर्ड, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एक नॉर्मल पर्सन एप्पल को एप्पल बोल सकता है, एप्पल बोल सकता है या एप्पल बोल सकता है. लाइक बहुत सारे इसके एक्सेंट्स हैं और एज पर प्लेसेस ये एक्सेंट हमेशा चेंज हो जाती है. होता क्या है कि जैसे आप अपनी एक्चुअली मदर टंग बोल रहे होते हो उसी के नियर बाय आप इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदी बोलते हो तो आपकी जो स्ट्रक्चर है माउथ की वो एक्चुअली हिंदी के अकॉर्डिंग बन जाती है. अब when you speak English at that time also, it starts speaking like you are actually speaking in Hindi way.
आई एम श्योर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग। ये ऐसा होता है कि जब आप अब अपनी मदर टंग बोल रहे होते हो उसके अकॉर्डिंग ही इंग्लिश अपने आप को स्केड्यूल कर लेता है। इस यही रीज़न है कि इंग्लिश डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट तरीके से बोले जाते हैं और वहाँ के लोगों में उसकी आई वुड से जो स्पीकिंग स्टाइल है वो बहुत अलग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज स्पीक्स लाइक दिस, इंडियंस स्पीक लाइक दिस, Britishers speak like this, Americans speaks like this. So every country has their own pronunciation skill, their own accent skill. That is why English is being spoken in every country, but it has, you know, a bit of different taste. Like if you'll change your country, you will see English there also, but from a different way, from a different perspective, from a different, I mean, completely transformation. So इसे बोलते हैं accent. The way how you pronounce any word, that is called accent. अब डायलैक्ट्स जो होते हैं ना, डायलैक्ट्स में सब आ जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन, वर्ड स्ट्रक्चर, ग्रामर, सेंटेंसेस, वर्ड प्रेफरेंसेस, ये सब आते हैं डायलैक्ट्स में। ये सब जानना भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत डीप जानना बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। ये हमारा सेकंड पार्ट था, मतलब इस वीडियो में मैंने 3 टॉपिक्स आपको बताए हैं। फर्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, सेकंड ये डायलैक्ट और एक्सेंट क्या होता है, और थर्ड टॉपिक मैं भी डिस्कस करूंगा कॉमन चैलेंजेस क्या हैं, आप फेस क्या कर रहे हो चैलेंजेस, और अगर इस चैलेंजेस को फेस कर रहे हो तो इसे कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्या इसके आई कैन से कि आई कैन गेट रीड ऑफ दीज इश्यूज। पहला चैलेंज होता है कि आर्टिकल्स, नाउन्स, वर्ब, एडजेक्टिव्स ये प्रेफर करने में बहुत इशू होता है। जैसे अगर आपने कुछ अच्छा देखा है तो आप इसे ब्यूटीफुल बोलो या फिर आउटस्टैंडिंग क्या बोलो, स्प्लेंडेड नहीं, तो आप वर्ड प्रेफरेंसेस में हमेशा अटक जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सा वर्ड मुझे चूज करना चाहिए जो कि इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड हो, सेटिस्फैक्ट्री हो। जो आप अपनी खुद की लैंग्वेज बोल रहे होते हो तो उस टाइम पे तो आपको एक्सपीरियंस हो चुका होता है, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, आप नए लैंग्वेज से एक्सपोज होते हो तो आपकी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है। आप सोचते हो कि इस सिचुएशन में मुझे हिंदी में क्या बोलना चाहिए था, और अगर मुझे ये हिंदी में बोलना चाहिए था तो इसे इंग्लिश में क्या बोलूँगा। फिर उस सिचुएशन में यू एक्चुअली ट्रांसलेट दैट इनटू इंग्लिश एंड देन यू स्पीक। तब तक तो टाइम निकल चुका होता है, पीपल हैव ऑलरेडी सेड व्हाट दे हैड टू से, बट इफ यू विल टेक टाइम you will no longer have any I mean opportunity to speak। तो ये ट्रांसलेशन वाला ये स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे माइंड में, क्योंकि वो ऑटोमेटेड प्रोसेस हमारे अंदर नहीं होता उस टाइम पे, क्योंकि हमारी मदर टंग कुछ और होती है और हम दूसरे लैंग्वेज से एक्सपोज हो रहे होते हैं। आपको वर्ब फॉर्म्स याद करने में इशू आता होगा, वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स कौन सा यूज़ होगा, V3 V2, हैव के साथ V3 क्या, इंडेफिनिट के साथ क्या लगाना है, कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या लगाना है, पास्ट के साथ क्या लगाना है, फ्यूचर के साथ क्या लगाना है, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म कहाँ लगानी है, वर्ब को थर्ड फॉर्म कहाँ लगानी है, ये सारे इश्यूज आपके साथ आते ही रहेंगे, ये आपको फेस करना होगा। इसके साथ साथ पंक्चुएशंस और सेंटेंसेस में भी आपको बहुत सारे इशू पता चलेंगे कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, पहले क्या लगाऊं, वर्ब, सब्जेक्ट, ये क्या होता है, आर्टिकल, ऑब्जेक्ट। इट विल बी लाइक हॉच पॉच इन साइड योर ब्रेन, यू विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेज, बट उस टाइम पे बहुत हार्ड हो जाता है सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना। इसके साथ साथ आपकी प्रोनाउंसिएशन और पंक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे क्या बोलने के बाद थोड़ा वेट करना है, क्या बोलने के बाद थोड़ा लंबा वेट करना है, ये सारी चीज़ें पंक्चुएशन में आती है। और एक्चुअली जब आप अपनी मदर टंग बोलते हो तो आपका सब कुछ ऑटोमेटेड होता है, आपका माइंड समझता है कि किस तरह से हमें मुझे बोलना है। बट जब आप अभी इंग्लिश एक्सपोज हो रहे हो तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट टेक्स लॉट ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस, इट टेक्स लॉट ऑफ न्यू वेज, देन इसकी ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाती है इंग्लिश में भी। बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम। और जितना टाइम इसे आप दोगे उतनी ज़्यादा आपको मतलब सिचुएशंस को फेस करना होगा, तभी तो आप इसे टाइम दे पाओगे। तो आज के लिए इतना ही हमने इस वीडियो में सीखा। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया इंग्लिश में, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस हमने जान ली। हमने ये भी जाना कि हम कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हमने ये भी जाना कि एक्सेंट क्या होता है और डायलेक्ट क्या होता है। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं अगले वीडियो में। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे।